कैसा रहा कल का दिन? आप लोग अपना 10 मोस्ट डिजायर वाला जो इम्पोर्टेंट या प्रायोरिटी वाले जो डिजायर लिस्ट था जो आपको तैयार करना था वो आप कर पाए, और आपको वर्ड्स कैसे करना है, क्या वो क्लियर हुआ? ओके, सो दैट्स गुड। अगर आप 10 लिस्ट आप लोग, सो आई थिंक ये आपको और क्लैरिटी दिया होगा, राइट? कि अभी मुझे क्या मोर इम्पोर्टेंट है, किसमें हम एनर्जी, बिकॉज जहाँ आप एनर्जी डालते हो वहीं हमारा अटेंशन जाता है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग एक छोटा सा प्रेयर बोलते हैं, देन वी विल स्टार्ट विथ रीडिंग इन इंग्लिश। क्लोज योर आईज, inhale slowly, exhale slowly, inhale slowly, exhale slowly. To the Supreme God, we thank you. Thank you for your blessings. Thank you for your divine light, love, and power. The angels present around us, present with each one of us, thank you for your guidance, help, and divine protection. Thank you for helping us understand today's chapter and implement it in our lives. We thank you for all of these magical techniques and insights. We accept your blessings humbly, deeply, permanently now. Thank you, thank you, thank you. Okay, gently open your eyes. So, who would like to read in English? I think yesterday, Ritika Bhabi, she wanted to read, right? You want to read today? Or whoever else, who else wants to read? Okay, then I shall read the chapter. Okay, so we've done this magical practice number 13. Let's do the day 14. Let's start reading. Okay. So ये जो आज हम लोग एक्सरसाइज करने वाले, ये बेसिकली अगेन यू नो जो अब हम लोग जो ग्रैटिट्यूड वाले जो अब पेजेस करने वाले, जो एक्सरसाइजेस करने वाले, दैट इज फॉर उसमें हम लोगों को ग्रैटिट्यूड हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं फॉर थिंग्स that are going to happen or things they want to happen. ये सारे जो chapters है, they deal with that. So today's chapter again is regarding that. So we can start reading. Let's start. Intentions. I think yes. Intention. Somebody's unmuted. Please mute कर लीजिए. Intuitions compressed into words enfold magical power. Okay, sorry, intentions compressed into words enfold magical power. Deepak Chopra, medical doctor and a writer. So I think a lot of you might be aware, आप लोग जानते होंगे दीपक चोपड़ा को. So बहुत सारे articles he writes and also meditations he recommends, and he talks about connection of mind and body. So in this he is saying कि आपका जो आपका इंटेंशन है, जो आप चाहते हो, उसको जब आप वर्ड्स में बोलते हो, कन्वर्ट कर देते हो, इट स्टार्ट्स टू हैव द पावर टू मैनिफेस्ट. ओके, लेट्स सी हाउ ये हम लोग कैसे करेंगे आज. To see and experience the most magical day of your life, you can be grateful for your whole day before you live it. To have a magical day, you simply think through your plan for the day and say the magic words, thank you, for each one going well before you have lived it. It's the easiest thing to do. It only takes a few minutes, but the difference it can make in your day is incredible. But grateful for your day beforehand creates a magical day through the law of attraction when you give thanks for the experiences in your day going well.
You must receive back experiences going well. तो इसमें क्या बोला गया है? बेसिकली आप जो आपका दिन है वो कैसे गुजरेगा अभी आगे, उसके लिए आप सोचते हो कि आप क्या चाहते हो, या यू वांट ईच वन ऑफ देम टू गो वेल, तो आप उसके लिए ऑलरेडी थैंक यू बोल देते हो. यू ऑलरेडी एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड कि ये हर एक चीज अच्छा जाएगा. ओके, एंड बिकॉज हमने ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर दिया है, सो बाय द मीन्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो एक्सपीरियंसेस हमें वापस मिलने चाहिए. Right now, if you see the prayer that I generally say, have you seen, have you paid attention to the words? किसी ने कोई कभी जो प्रेयर हम लोग, जो भी प्रेयर बोलते हैं हम लोग before the session, has anybody paid attention to the words? Have you noticed anything? Yes ma'am. Okay, क्या नोटिस किया? आप जैसे कि जो अभी आज सेशन है उसके लिए आप पहले ही थैंक यू बोले, थैंक यू फॉर द सेशन, थैंक यू फॉर द इंटरनेट एंड ऑल. यस, तो बेसिकली आई एम ऑलरेडी गिविंग थैंक्स कि इस चैप्टर से जो हम सीखेंगे उसके लिए धन्यवाद, इसको हम अप्लाई कर पाए उसके लिए धन्यवाद. सो ऑलरेडी आई एम, दिस इज व्हाट माय इंटेंशन इज, कि मैं उसको अप्लाई कर सकूं, मैं उसको समझ सकूं, क्योंकि द होल पर्पस कि हम लोग कोई भी चीज स्टडी करते हैं इज फॉर व्हाट, आप उसको समझ सके. बट नाउ सॉरी, दिस कैन टेक टाइम. या तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने में टाइम लग सकता है, या फिर आप उसको पहले कर सकते हो, या फिर आप उसको फास्ट कर सकते हो. राइट ना, फास्ट कैसे करोगे? आपका फोकस जब बेटर रहेगा, आपको आपकी अलर्टनेस रहेगी, आपकी समझने की शक्ति अच्छी रहेगी. सो फॉर ऑल दैट वी मस्ट बी ब्लेस्ड फॉर दैट. तो हम लोग उसके लिए ऑलरेडी थैंक यू बोल रहे हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड वॉट एवर इज गोइंग टू बी सेड. इनफैक्ट हमारे जो इंसाइट्स है इस चैप्टर के बारे में, ग्रैटिट्यूड के बारे में, वो डीपन होते जाए. ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है. If you don't believe you have the power to affect the circumstances of your day so dramatically, think about a time when you woke up grumpy or in a bad mood. You went off into your day, and one thing after another went wrong until by the end of the day, you were exclaiming that you had a heck of a bad day, as though the bad day happened by accident. Well, the only reason you had a bad day was because you took your bad mood from the morning with you. And it was your bad mood that was the cause of one thing after another going wrong. Okay, so basically ये कई बार हम लोग देखते हैं कि एक चीज बुरा होता है, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट और फिर बुरा होते जाता है. then we say what a bad day, nothing can get worse than, इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, आज का दिन बहुत ही खराब था. and we believe कि ये एक्सीडेंट्स थे, and ये हम बिलीव करते कि हमारा रोल उसमें कुछ था ही नहीं. बट एक्चुअली बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब हम पहले चीज जो बुरी होती है उसके लिए हम क्रिटिसाइज करते हैं, उसके लिए हम लोग एंगर फील करते हैं, वट एवर फील करते हैं, वी ऑटोमेटिकली स्टार्ट टू अट्रैक्ट more such circumstances in our life, but we don't realize it क्योंकि हमारा feelings low जा रहा है. But if we are able to switch that feeling and raise the frequency to again feeling better, feeling happy, feeling contented, so the day outcome can be changed. It is in our hands. But वो उस लेवल तक पहुंचने के लिए जो आज का है प्रैक्टिस है, will be one of the tools जो हम लोग को हेल्प करेगा प्रैक्टिस करने में. Even waking up in a bad mood doesn't happen by accident, because it means you went to sleep thinking negatively about something, perhaps without realizing it. It's the very reason why you're doing the magic rock practice last thing at the night, to ensure that you go to sleep thinking good thoughts. The magic rock practice at night, combined with count your blessings every morning, sets your mood at the night in the morning, and they guarantee that you're feeling good before you go off into the day. ये हमने दोनों चैप्टर डिस्कस किया था, तो आई सेड दैट दिस विल हेल्प यू स्लीप बेटर. ये आप इस गुड थॉट्स के साथ आप जब नींद में जाओगे, आप सोने जाओगे, तो जब आप उठोगे you will again, आप जब 10 blessings करते हो, because that's the first thing recommended, तो आपका दिन का जो
फ्रीक्वेंसी है जो आपने अपने दिन का जो नोट सेट किया वो हाई रहेगा, जिसके कारण यू विल हैव बेटर एक्सपीरियंसेस at home, in relationship, in life. Okay, that's why she is given you this. And trust me, that like I said ना, कि अगर आप मूवी देख रहे हो तो आप मूवी के बाद मैजिक रॉक प्रैक्टिस करके सोओगे. You will not do magic rock practice और फिर मूवी देख रहे हो, वायलेंस वाली मूवी देख रहे हो, and you're feeling angry or you're feeling frustrated because of whatever is happening in the movie. तो आप उस फीलिंग के साथ you cannot go to sleep, क्योंकि उस वो फीलिंग आपके माइंड में चलता रहता है, and it, when you wake up in the morning, you wake up with the same frequency. In fact, a lot of people have bad dreams because of that. A lot of people जो नींद में बड़बड़ाते हैं या नींद में उनको बुरे सपने आते हैं, वो उठ जाते हैं. That's because of the same feeling that they go to sleep with. To have a magical day, you need to feel good. I don't know anything other than gratitude that guarantees you to put in a good mood almost instantly. Whatever your plans are for today, whether it's traveling, a meeting, work project, lunch, exercise, dropping off, dry cleaning, playing a sport, going to the theater, meeting a friend, yoga, cleaning your house, going to school, or buying groceries, turn today into magical by saying thank you for each plan going well before you live it. Before you're a person who writes daily list of things, if you are a person who writes daily list of things you need to do, then you can go through the daily list and be grateful for each one having gone well. Whether you have this magical practice in your mind or on paper, the most important thing is that you feel the result of each plan and activity was the best it could have been. Okay, so आपका जो भी काम रहता है, जो भी डेली का काम रहता है, आप सुबह ब्रेकफास्ट बनाते हो, आप अभी आप ग्रोसरी लेने खुद ही जा रहे हो, या whoever, आपको कुछ बिल पे करना है, आपको कोई कंसल्टिंग करना है डॉक्टर से, आपको ड्राई क्लीनिंग में कपड़े देने हैं, आपको मे बी आयनिंग करनी है, आपको आज घर की कोई एरिया की सफाई करनी है, whatever it is, एक्सरसाइज करनी है, whatever it is, पीटीएम है, स्कूल में टीचर की मीटिंग है, or if there is some issue that you're going to talk to someone about, any activity that you're going to be doing, उसके लिए आप पहले ही थैंक यू बोल सकते हो और ग्रेटफुल फील कर सकते हो कि हर एक्टिविटी अच्छा गया and there was a good outcome out of each activity. और अगर आप लिस्ट बनाते, बहुत लोगों को रात में ही शेड्यूल करने की आदत है, सो जब आप लिस्ट बनाते हो आप तभी थैंक यू बोल सकते हो फॉर whatever things that they are going to be doing tomorrow. Like for me, जो हम लोगों के शेड्यूल है ऑफ हीलिंग्स और काउंसलिंग, वो हम लोगों का एक दिन पहले ही मोस्टली बन जाता है. So for me, I can say I can be grateful for each of the healing outcomes. I can be grateful for each of the counseling outcomes or any other meeting that I'm going to have. Okay, any aspect. When you use gratitude ahead of time to have a magical day, it wipes out unexpected problems or difficulties before they happen. The more you use this magical practice, the better your days will become. And from the smallest thing to the important things, everything starts going well in your life. The bumpy days smooth out, and instead of frustrating or troublesome things happening in your life, your days start to have a magical flow about them. And things seem to go magically your way with less effort, no worry, no stress, and far more joy. So जब आप gratitude feel करते हो इन सब चीज़ों के लिए, वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है. अगर उनमें कोई issues भी आने वाले होते हैं, वो smooth out हो जाती है, and आप कम effort के साथ कर सकते हो. कितने लोगों को लगता है कि खाना बनाना, खाना की मेनू सोचना इज अ बिग टास्क? कितने लोगों को ये लगता है? ऑल हाउसवाइफ्स. ओके, so I have one raised hand and one in the chat, so I'm sure this is like a major issue for everyone. लेकिन कभी ऐसा लगता है, हमेशा नहीं होता, सबके लिए ये इशू हो जाती है कि क्या बनाए और बोलेंगे ये बनाएंगे, तो कुछ लोग बोलेंगे ये नहीं खाएंगे, and then you wonder कि क्या करे, क्या बनाए that everyone will eat.
so this is like a lot. ऐसा लगता है oh God क्या क्या करे कैसे क्या. So it's a lot of effort ना. But अगर आप gratitude show करने लग जाते हो या उस चीज के लिए gratitude express करने लग जाते हो, then this task will become easier. Now again don't believe me, ये आप करिए. कोई एक एस्पेक्ट में gratitude यूज करना शुरू करिए जो आपको लगता है कि अरे ये हर समय इसमें मुझे कोई ना कोई मुझे स्ट्रेस होता है या मुझे आई टेंड टू वरी. तो उस चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस पहले से ही करिए. इफ यू नो आज वो करना है, कल वो करना है, जो भी करना है, यू डू दैट. ओके. सो बिकॉज इफ यू सी कुछ कुछ काम है हमारे लाइफ में जो डेली लाइफ में जो बहुत टाइम लगता है या एटलीस्ट हम लोग को लगता है कि बहुत टाइम ले रहा है या मेरा आधा दिन तो इसी में पार हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल मदर्स विथ चिल्ड्रन, खाना खिलाने में उनको कितने लोगों को लगता है कि एक एक घंटा बैठे रहना होता है या तो खाता ही नहीं है, भागते रहता है. नो वन. मैम यस. आई फील इन होमवर्क, वो होमवर्क ही नहीं करता है. हाँ. सो होमवर्क स्टडीज के लिए हो सकता है, whatever हो सकता है, अदर थिंग्स. बट अगेन वो स्ट्रेस क्रिएट करता है ना आपको. फील लाइक अभी एक घंटा मुझे लगेगा. So then in fact a lot of people can't do other things because वो एक्टिविटी इतना स्ट्रेस क्रिएट. अब होमवर्क कराना है तो होमवर्क तो छोड़ नहीं सकते, होमवर्क तो कराना ही होगा. अब होमवर्क 2 घंटा लेता है तो हम बाकी कुछ नहीं कर सकते. You want to do something but आप कुछ नहीं कर सकते, right? So then you have to start expressing gratitude. Okay, उस सिचुएशन के लिए already start expressing gratitude. When I first began to use gratitude to have a magical day, I chose to give thanks ahead of time for the events in my day and that I didn't enjoy doing very much. One of those things was going to supermarket. At the beginning of the day, I said the magic word, thank you for the easy and joyful trip to the supermarket. I had no idea how a trip to the supermarket could be easy and joyful, but I felt as much gratitude for that outcome as I could. राइट दोस्तों, राइट नाउ जिनको होमवर्क या खाने के लिए तकलीफ है, मतलब स्ट्रेस होता है, आपको नहीं पता कि कैसे ये तकलीफ दूर होगी, बट आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना और ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू कर सकते हो. ओके, सो इसके लिए आपको विजुअलाइज करना होगा कि आपको चाहिए क्या. हाउ डू यू वांट योर लंच टाइम टू बी, हाउ डू यू वांट कि वो बच्चा होमवर्क करे, कैसे कैसे आप चाहते हो. द रिजल्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड मैजिकल पावर was this is very interesting, please listen, pay attention. I got a parking space right at the door. I then ran into 2 friends. One friend I hadn't seen for a long time and we got together for lunch after shopping. The second friend I ran into told me about an amazing and inexpensive house cleaner, which was something I had been dreaming of having. As I did my supermarket shopping, wherever I looked, what I needed was magically in front of my eyes. Everything was in stock on the shelf. One after another was on special. And as I approached the checkout after doing my shopping in record time, a new aisle opened and the checkout person signaled me to them. As the checkout person was putting my items through the register, out of the blue, she asked, "Do you need any batteries?" It was one item I had forgotten to buy. My trip to the supermarket was beyond easy and joyful. It was downright magical. Can you believe this? So अगर हम लोग ये यूज नहीं कर रहे तो हम लोग ही what do I say? हम लोग ही बुद्धू है, राइट? हम लोग ही यूज नहीं कर रहे. She has explained it so beautifully कि what can gratitude do? It only takes a few minutes in the morning to use gratitude to have a magical day by giving thanks for the events in your day ahead of time. But this one practice alone will change the way your entire day unfolds. To have a magical day when you wake up to the new day, either before you get out of bed or while you're showering or getting dressed, think about your plans for the day and give thanks for each one going brilliantly well. Making sure you do this magical practice at the beginning of your day and in one session. In your mind, work your way through the plans you have for the morning, afternoon, evening until bedtime. With each plan or event, say the magic
words, and imagine that you're saying thank you at at the end of the day, and you are immensely grateful because it did not go brilliantly well. You can use as many superlatives as you like to help you feel more grateful. Thank you for the incredibly successful meeting. Thank you for the amazing outcome with the phone call. Thank you for the one of the best days ever at work. Thank you for this thrilling sports game. Thank you for the effortless, fun day of cleaning. Thank you for the great night out with our friends. Thank you for the relaxing day of travel. Thank you for the amazing energy from my exercising session. My exercise session. Thank you for the best family get together we've ever had. This magical practice is more powerful if you say the magic words thank you out loud for each experience. But if you are not in position to say them out loud, then it is fine to say them in your mind. Okay, so I hope it is clear कि आपको हर चीज के लिए थैंक यू आपको कैसे एक्सप्रेस करना है, आपको क्या चाहिए. लाइक ट्रैवल से आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो आप थैंक यू फॉर रिलैक्सेशन बोलिए. इफ यू वांट द ट्रैवल टू बी वेरी fun filled, then you say thank you for a fun filled day of travel. तो क्या चाहिए आपको, you just write thank you for a pleasant counseling with the doctor, or it can be thank you for a very good outcome of the counseling with the doctor. Okay, because a lot of time people go to the doctor and they fear कि अरे डॉक्टर ने ये बोला वो बोला कुछ निकल गया तो, right, that's fear. Instead of having fear, let's start practicing gratitude. So we don't know what is going to come out. And after you have finished your gratitude magical power for each and every task and event in your day, and by practice by saying and thank you for the great news coming to me today, without fail, every single morning when I finish using gratitude to have a magical day, I give thanks to the great news coming to me that day. As a result, I've never received so much great news in my entire life. One week after another, one day after another, great news pours in. Each time I receive another piece of great news, I'm especially grateful and excited because I know I've used gratitude's magical power to bring it. And then even more great news continues to come in. If you want to receive more great news than you ever had before, then just follow in my footsteps. Okay, so I hope ये clear हो रहा है कि how to practice this. Does anybody have any doubt before we go into? Excuse me. Yes. Like आपने डॉक्टर के लिए कंसल्टेशन के लिए कहा तो खुद के लिए कर सकते हैं, बच्चे या कोई जा रहे हैं उसके लिए भी हम लोग ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं. हाँ, because you are connected and वो न्यूज़ आपको कंसर्न करती है, so you can. Okay, thank you. Any more questions? Okay. अगर किसी और के लिए करना हो, जैसे मेरी सिस्टर यहाँ नहीं है, वो दूसरे स्टेट में है और उसके फैमिली में बहुत सारे इश्यूज चल रहा है, तो क्या मैं उसके लिए कर सकती हूँ? Yes, you can at least express gratitude ki thank you for maybe smoothing out the issues in the family. Thank you for the thank you for the harmony and peace in the family, something like that. Yes, but ideally अभी आप लोग एक बार अपने लिए practice करिए, because जब आपको अपने लाइफ में चेंजेस दिखेंगे, मैजिक होता दिखेगा अपने लाइफ में, जब आप वो एक्सपीरियंस कर पाएंगे तब आपको बिलीफ आएगा, और जब फिर आप दूसरे के लिए उसको यूज करना चाहेंगे तो इट विल हैव मोर पावर बिकॉज यू हैव बिलीफ. अभी पहले मैं खुशबू मैम, हाँ, अभी पहले अ लॉट ऑफ आई एम श्योर बहुत लोगों को अभी बिलीफ इतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि अभी 12-13 दिन हुए हैं. हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में कुछ हुए होंगे एक्सपीरियंसेस, बट नॉट मेनी हैव शेयर्ड, सो आई डोंट नो कितना आपको डिफरेंस हुआ है. बट वंस यू स्टार्ट टू सी द डिफरेंस, लाइक फॉर एग्जांपल मंजुला जी, इज शी हियर? सो उन्होंने वो डिफरेंस देखा है, उन्होंने एक्सप्रेस किया था इन वर्क, इन हेल्थ, इन रिलेशनशिप, उन्होंने एक्सप्रेस किया था. सो उनका बिलीफ ऑन ग्रैटिट्यूड हैज रियली ग्रोन. तो नाउ विथ फर्म बिलीफ वो दूसरों के लिए भी ये यूज कर सकती है, राइट?
And anyways, you can also do magic dust. We've done that chapter, right? Okay. Yes, ma'am. So anybody who would like to read in Hindi? मैं पढ़ूंगी. So, एक minute. Okay, so शुरू करते हैं हम लोग. Excuse me, ma'am, magic practice नहीं हुआ है number 14. We didn't read it? Oh, I'm sorry. Sorry. 1 second. 1 minute हम लोग इंग्लिश वाला कंप्लीट कर लेते हैं. Okay. Thank you for reminding. Thank you. So magic practice number 14, have a magical day. Count your blessing, make a list of 10 blessings. Write why you're grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. In the morning, work your way in your mind through the plans you have for the day and evening until bedtime. With each plan or event, say magic words, thank you for it having gone well. Imagine that you're saying thank you at the end of the day and you're immensely grateful for because it went perfectly. After you're finished being grateful for all the plans in your day going brilliantly well, end this magical practice by saying, and thank you for the great news coming to me today. Okay, so this is the last. आप ये बाकी सब चीजें ना अभी obviously आधा दिन हुआ है 12 o'clock for a lot of people, पर अब जो बाकी का दिन है और आपके जो बाकी के काम है उसके लिए आप इसको प्रैक्टिस करो. And the last में you will write and thank you for the great news coming to me today. As in say, not write. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Okay. So, yes, I'll stop share. पढ़े मैम. हेलो. हेलो. हाँ पढ़े. हाँ प्लीज गो अहेड. 14वां दिन. अपने दिन को जादुई बनाएं. जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है. दीपक चोपड़ा, जन्म 1946, चिकित्सक और लेखक. अपने जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं. यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने से पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द का धन्यवाद करना है. यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है. अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो सकता है और आपके दिन को जादुई बना देता है. जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे. यदि आपको इस बात पर यकीन नहीं है कि आप अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है तो ऐसे समय के बारे में सोचे. जब आप चिड़चिड़ी
चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जगे हैं, तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए आपका दिन सिर्फ इसलिए एक मिनट क्या सभी को क्लियर सुनाई दे रहा है? नो मैम, आवाज थोड़ी कम आ रही है इनकी। ओके कैन वी हैव अनदर रीडर? सॉरी, क्योंकि एक्चुअली ना आपका शायद नेटवर्क में इशू है, तो आवाज ठीक से नहीं आ रही है। एनीबडी एल्स हु कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीड? मैं पढ़ देती हूँ। यस, आवाज क्लियर है? यस, थैंक यू। आपको जो प्रीवियस रीडर है आपका नाम बताइए। रूबी जी थी क्या? मंजुला। ओके थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग। जस्ट थोड़ा नेटवर्क इशू था, सो अदरवाइज थैंक यू सो मच। अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? अभी बेटर है, हाँ। तो शुरू करो क्या? अच्छा करिए। कहाँ से पढ़ रहे थे? तो वी कैन रीड ये बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा। हाँ गुजरा। देखिए आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि अपने सुबह को बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। बुरे मूड को एक मिनट हम लोग पॉज करते हैं यहाँ। तो बेसिकली अगर आपके साथ ऐसा हो, ओके, नाउ दैट हमने मैजिक बुक प्रैक्टिस किया है और हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि चीजें सही नहीं जा रही हैं, एक बार 5 मिनट टाइम निकालिए और जस्ट थिंक एंड से स्टॉप। ओके, व्हाट एम आई डूइंग? मैं किस तरह के थॉट्स बना रही हूँ? मैं क्या कर रही हूँ? क्या मैं गुस्सा हो रही हूँ? क्या मैं क्रिटिसाइज कर रही हूँ? एंड देन यू स्टार्ट टू चेंज। आप ग्रैटिट्यूड, अब जो आपके पास रिमेनिंग डे है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड का एक्सरसाइज करिए। सो दैट इज द वे वी कैन चेंज इट। ओके, तो ये आपका आज जो चैप्टर है, ये चैप्टर ही इसीलिए है। तो वी शुड नो नाउ, हम लोगों को प्रैक्टिस करना है कि अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसको स्विच कैसे करें। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बुरे मूड में जगना भी संयोगवश नहीं होता है। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, आई थिंक देयर इज कुछ इशू है, आवाज आ रही जा रही है। सॉरी, ठीक है, दूसरे को। हाँ, सो थैंक यू सो मच। स्नेहा वाज रीडिंग क्या? जी मैं पढ़ देती हूँ। यस, मेरी आवाज क्लियर है ना? यस। ओके। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास के सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहे। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपने नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हो। आज आपके एक मिनट, विल पॉज हियर। सो इफ यू सी एवरी चैप्टर एंड बार बार रोंडा बायर्न हमारे मूड, हमारे फीलिंग्स पे बहुत एम्फेसिस दे रही है। ओके, और जिन लोगों ने सीक्रेट मूवी देखा होगा तो वो बोलते हैं कि यू हैव टू फील गुड। आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर आप चाहते हो चीजों को मैनिफेस्ट करने का अपने लाइफ में, तो आपको फील गुड करना ही पड़ेगा।
So and she says gratitude के and again going further वो बोलती है कि gratitude के अलावा मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ जो मतलब जो गारंटी देता है कि आपके फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी बेटर हो रही है. सो फील गुड हमेशा याद रखिएगा. अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, अगर आपको कुछ भी मतलब यू आर नॉट फीलिंग वेरी गुड, देन आस्क योरसेल्फ कि एम आई विलिंग टू अट्रैक्ट दो सिचुएशन जो मुझे और खराब फील कराएगा. अगर नहीं तो आप उसको चेंज कर सकते हो. इसी के लिए हम लोग समटाइम्स कुछ कुछ चीज़ें रखते हैं जिसको हम लोग मूड शिफ्टर्स बोलते हैं. कुछ ऐसी चीज़ें आप देख सकते हो, मे बी कोई कॉमेडी शो, कुछ मूवी या व्हाटएवर इट इज़, आप डांस कर सकते हो जिससे आपका मूड चेंज हो. एंड जब आपकी मूड चेंज होता है, आप हायर फ्रीक्वेंसी पे जाते हो, देन आपका डे का फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाता है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे यह यात्रा करना ही हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल दे, ताकि हर रोज ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए. इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज की अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं. चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ हैं. जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं. आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे. छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती हैं. मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है. इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है. जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था. उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था. दिन की शुरुआत में जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद. मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की. कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के सामने पार्किंग की जगह मिल गई. मुझे 2 सहेलियां भी मिल गई. उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया. जिस दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया. संयोग देखे मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी. सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी. हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी. एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे. और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची, तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया. जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी. सुपरमार्केट भी मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी. यह तो दरअसल जादुई थी. Yes, so we'll just pause here.
So I was just thinking ki where I am getting stressed. So then I thought कि we spend a lot of time, in fact हम लोग ने काफ़ी टाइम पहले पास्ट में उस चीज़ को क्रिटिसाइज करने और वर्बलाइज यानी बार बार आप बोलते हो कि मेरा बच्चा तो होमवर्क कराने में बहुत परेशान करता है, मेरा बच्चा तो होमवर्क कराने में बहुत परेशान करता है, या आप सोच रहे हो फिर होमवर्क के लिए अब 1 घंटा लगेगा, फिर उसके लिए टाइम ही नहीं बचेगा. सो एंड देन यू फील कि नहीं हम तो वहाँ नहीं जा पाएंगे, या जो ये क्लास नहीं कर पाएंगे, सेशन, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सेशन बहुत हो रहे हैं ना, ये सेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो उसका होमवर्क टाइम है. सो आप क्या कर रहे हो, उस चीज पे क्रिटिसिज्म जमा कर रहे हो. But then now you start to say, thank you for the perfect homework time with the kid. Thank you for the best and effective study time with the kids, तो अगर आप ये करो and visualize करो that, maybe आपका बच्चा खुद ही पढ़ रहा है या खुद ही बोलता है कि मम्मी ये होमवर्क है, मैं कर लूँ क्या खुद, and then he starts to do his homework on his own. And फिर वो लाके दिखाता है, देखो मैंने कर लिया, and you check it fast, and then आपको बैठना ही नहीं पड़ा साथ में. How would that be? जब आप उसके बारे में सोचते हो, does it give you happiness? Does it give you joy? I'm just giving one example. I think ये कितना अच्छा फीलिंग देता है, राइट? कि आपका काम जो अदरवाइज आपको बहुत एफर्ट उसमें लगाना पड़ता है, वो एफर्ट कम हो गया. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. ओके, नाउ समटाइम्स आपको नहीं पता होगा कि विजुअलाइज क्या करना है, बट यू कैन एटलीस्ट फील ग्रैटिट्यूड कि वाह बहुत अच्छे से होमवर्क हो गया, या बहुत अच्छे से पढ़ाई हो गया, आई एम वेरी सैटिस्फाइड विद द वे ही स्टडीड टुडे. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. लेट्स गो अहेड. अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहे श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं. अविश्वसनीय रूप से सफल. एक मिनट, डिड वी स्किप? ये हम पढ़ लिए थे क्या, जादुई दिन पाने के लिए? अच्छा, इधर से, ओके सॉरी. जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है. जब आप पहले से ही अपनी दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा. जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक की अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें. यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें. मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं. जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता, हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा. अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं. अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद. फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद. ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद. रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद. सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक के दिन के लिए धन्यवाद. मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद. यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद. व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद. सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद. यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सके तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है. लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में न हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है. जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद. बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ. यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी. एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती हैं. हर बार जब मुझसे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसके आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था
और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। ओके, सो शी इज़ वेरी क्लियरली गिवन कि क्या आपको करना चाहिए अपने एक्सपीरियंस से। सो आई होप इट इज़ क्लियर आप लोगों को, क्योंकि अब जो रिमेनिंग आफ्टर दिस सेशन आप 5-10 मिनट लीजिए और अपने जो बाकी आज का दिन है उसमें जो जो आपको करना है उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। लेट्स रीड प्रैक्टिस। जादुई अभ्यास क्रमांक 14। अपने दिन को जादुई बनाएं। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड, सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि अच्छी तरह हुई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। थर्ड, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ होले तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। फोर्थ, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग। ओके, सो इज इट क्लियर कि क्या करना है आप लोगों को? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? मैम, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। यस, मतलब आज के जो टास्क में है वो मतलब आने वाले समय के लिए हमें धन्यवाद देना है, मतलब जो होने वाला है आज के दिन में जो आपको करना है, जी। आपको अभी तक तो हम उनके लिए कर रहे थे जो हमारे पास है या फिर जो Yes. हम यूज कर रहे हैं। यस, तो वो मैंने कल भी बोला था, आज भी मैंने अभी शुरुआत में बोला था कि 12 दिन तक आपके पास जो है उसके लिए आप थैंक यू बोल रहे थे, पर अब आप ग्रैटिट्यूड को यूज करना सीख रहे हैं फॉर उन चीजों के लिए जो आपके पास नहीं है या होने वाले हैं। लाइक कल वाज 10 अपना विश लिस्ट जो आप मैजिकल प्रैक्टिस, तो उसमें आप ऑलरेडी थैंक यू बोल रहे हैं फॉर योर टॉप 10 डिजायर्स। वो अभी मिले नहीं है बट आप ऑलरेडी उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं। और आज का है, आप ऑलरेडी उन सारे एक्टिविटीज के लिए थैंक यू बोल रहे हो, उनके आउटकम के लिए जो आपका आज है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुए या हुए नहीं है जी। ओके, अब हम लोग Excuse me, ma'am. नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड में जा रहे हैं। यस मैम, ये मतलब आपने जो बोला कि आज दिन का जो शेड्यूल है वो शेड्यूल शुरू होने से पहले हमें थैंक यू बोलना चाहिए, उसके लिए मतलब ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। ठीक है, मतलब कई बार मतलब सिर्फ मैं नहीं बाकी भी मतलब जो रहते हैं कि वो एक शेड्यूल प्लान करते हैं, लेकिन इनकेस वो सुबह लेट उठ जाते हैं तो जो शेड्यूल है वही अपसेट हो जाता है, या वो शेड्यूल प्लान भी नहीं रहता है कि हमको आज दिन करना क्या है। तो वो सिनेरियो में क्या करना चाहिए? एक रात पहले बोल लीजिए थैंक यू फॉर द परफेक्ट शेड्यूल टुमारो। ओके। हेलो मैम, लेट हो गए कोई बात नहीं है ना, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग ना कि एक कुछ हुआ जो मे बी आपको अपसेट कर दिया या आपको ऐसा लगा कि अरे ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। आई सेड ना यू स्टॉप योरसेल्फ वहां उस समय एंड 2 मिनट लीजिए एंड नाउ यू सी अब क्या क्या होना है। तो अब उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए। इट्स नेवर टू लेट। आपके शेड्यूल में आप लेट उठे, बट इट्स नेवर टू लेट टू डू ग्रैटिट्यूड। हेलो मैम। यस पूजा। सर मैम, आज मैं न्यू हूँ, आज पहला ही क्लास है मेरा। ओके, तो बहुत सो अच्छा पूजा experience ऑल द है। वीडियोज आर अवेलेबल ऑनलाइन ऑन द यूट्यूब Okay. चैनल। तो आप इसको फर्स्ट डे से देखिए, बिकॉज आप फर्स्ट डे से जो प्रैक्टिसेस जितना करना शुरू करेंगे उतना आपको ये समझ में बेटर आएगी एंड उतना आप इसका इफेक्ट अपने लाइफ में समझ पाओगे कि आप इसको अपने लाइफ में जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि हमने जो 10-12 दिन का प्रैक्टिस किया है तो हमारा ग्रैटिट्यूड का एक लेवल बन चुका है और अब हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। तो आप जैसे वीडियोस देखोगे, उसका लिंक हम वापस ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो आप इसको आप वो लेवल पहले आपको बनाना होगा
फिर आप आगे बढ़ते जाओगे। तो यू कैन जस्ट गो डे 1 डे 2, जैसे आज से शुरू हो सकता है, डे 0 डे 1 डे 2, आप फिर ऐसे आगे बढ़ सकते हो। ओके मैम, थैंक यू मैम। या यस, ओके, सो आई थिंक ऑल क्लियर है डाउट्स। लेट्स क्लोज आवर आईज एंड से द प्रेयर। यू हैव सम डाउट? ओके, नो मैम। लेट्स क्लोज आवर आईज। मैडम एक डाउट है। ओके फाइन, मैडम सॉरी, इट्स ओके। वो 10 की जगह 12 विश लिस्ट कल मैंने चुन लिया था, तो कोई बात नहीं है, टॉप 10 तो है ही है ना उसमें, 11th और 12th है। हेलो, टॉप 10 तो लिख ही लिया ना उसमें, 12 लिखा होगा तो टॉप 10 तो 1 to 10 हो ही गया ऑटोमेटिकली। 11-12 उसमें कंसीडर नहीं होगा? इट्स ओके, कंसिडर मतलब नो, इट्स ओके, इट्स फाइन, कोई बात नहीं है। टॉप 10 वो लिखने, जब आप 11th एंड 12th लिखे हैं तो आपका टॉप 10 तो हो ही गया, टॉप 10 चाहिए था। इट्स ओके अगर आपने 1-2 एक्स्ट्रा कर दिए तो। थैंक यू मैम। या लेट्स क्लोज आवर आईज। भगवान, हम आपके सारे आशीर्वादों के लिए धन्यवाद करते हैं। कृतज्ञता को समझने के लिए हम आपके दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा और दिव्य ज्ञान के लिए आवाहन करते हैं, और हम उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Gently open your eyes. Okay, have a good day everybody, and थैंक यू मैडम। I'll see you tomorrow. थैंक यू मैम। so much, मैम थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you, Bye. ma'am. Thank you, ma'am.